آج کا خوبصورت سا ٹور شروع کرتے ہیں۔ لسڈنا جانے والے اس روڈ کو آپ مکمل طور پر تفریحی مقام ہی سمجھیں۔ یہاں پر ہر نئی دکھنے والی چیز انتہائی خوبصورت اور پرکشش ہوتی ہے۔ یقیناً پورے راستے میں آپ کو خوب انجوائمنٹ اور خوب مزہ آئے گا۔ فیملی کے ساتھ زیادہ یہاں پر تفریح میں مزہ آتا ہے، لیکن اگر اکیلے سفر کر رہے ہوں تو تب بھی یہ راستہ آپ کے لیے خوب انٹرٹینمنٹ اور تفریح فراہم کرتا ہے۔ باغ ذات کشمیر کے علاقے میں موجود یہ خوبصورت مقام لسڈنا کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ یہاں پر ہر روز ٹورسٹ کی ایک بڑی تعداد موجود ہوتی ہے۔ ٹورسٹ کا یہاں پر خوب انجوائمنٹ کرنا اور یہاں پر لطف اندوز ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یقیناً آزاد کشمیر کے اندر موجود یہ سیرگاہیں انتہائی خوبصورتی پیش کرتی ہیں اور لوگوں کے لیے دلچسپی کا باعث بنتی ہیں۔ لسڈنا کے مقام پر موجود گیسٹ ہاؤس سے آپ خوب لطف اندوزی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں سے دور دراز کے دکھائی دینے والے علاقے انتہائی خوبصورت اور پرکشش دکھائی دیتے ہیں۔ لسڈنا کے مقام پر موجود یہ پارک انتہائی خوبصورت ہے۔ یہاں پر موجود یہ گیسٹ ہاؤس اور اس کے آس پاس دکھائی دینے والے نظارے انتہائی خوبصورت ہوتے ہیں۔ لسڈنا کے مقام سے سامنے دکھائی دینے والی یہ چوٹی انتہائی خوبصورتی پیش کرتی ہے۔ اس پر لوگ اس وجہ سے جاتے ہیں، یہاں پر دکھائی دینے والا اللہ کا خوبصورت سا نام بھی ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ یہ دور سے دکھائی دینے والا خوبصورت سا اللہ کا نام یہاں پر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے اور لوگ اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ پہاڑ کی اس چوٹی پر دور سے دکھائی دینے والے یہ بادل بھی یہاں کے لیے انتہائی خوبصورتی پیش کرتے ہیں۔ اس مقام پر ایک آرٹیفیشل سیلفی پوائنٹ بھی تعمیر کیا گیا ہے تاکہ یہاں پر آنے والے لوگوں کے لیے انتہائی خوبصورت مقام پیش کیا جا سکے۔ یہاں پر ہوٹلز بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ اوپر والی چوٹی پر کھڑے ہو کر نیچے دیکھیں گے تو انتہائی خوبصورت مناظر آپ کے سامنے ہوں گے۔ ایک خوبصورت سی موڑوں والی یہ روڈ دور سے دکھائی دینے میں ایک سانپ کی مانند دکھائی دیتی ہے۔ یقیناً یہ ایک خوبصورت نظارہ ہے۔ لسڈنا کے مقام پر موجود بلند و بالا یہ چوٹیاں اور ہرے بھرے یہ کھیت اور خوبصورت قسم کے میدان انسانی دلوں کو یقیناً کھینچ کر لے آتے ہیں۔ اس مقام پر موجود یہ خوبصورت روڈ اور اس کے ساتھ تعمیر کیے گئے پرانی طرز پر بنے ہوئے یہ گھر انتہائی خوبصورت مناظر پیش کرتے ہیں۔ ایک عرصہ پہلے تعمیر ہونے والا یہ خوبصورت روڈ اب کھنڈرات بن چکا ہے۔ یہاں پر ہر گاڑی آسانی سے اب نہیں چل پاتی ہے۔ اب تک ہم نے لسڈنا کے پہلے سٹیپ کو مکمل طور پر دیکھ لیا۔ یہاں پر موجود سہولیات اور یہاں کے نظارے بھی ہم نے دیکھے ہیں۔ اب ہم دوسرے اسٹیپ کی طرف چلتے ہیں جو یقیناً پہلے والے اسٹیپ سے 1000 گنا زیادہ خوبصورت اور بہتر ہے۔ یہ وہ مورچے ہیں جو پہلے زمانے کے اندر جنگوں کے دوران استعمال کیے جاتے تھے۔ یہ لسڈنا کا ٹاپ کا مقام ہے۔ یہاں کی خوبصورتی پہلے اسٹیپ سے کئی گنا زیادہ ہے۔ یہاں پر موجود بسنے والی یہ خوبصورت سی ڈھوکیں دور سے دکھائی دینے میں انتہائی خوبصورت دکھائی دیتی ہیں۔ یقیناً یہاں کی خوبصورتی دوبالا ہے۔
रोड के किनारे मौजूद ये खूबसूरत सी मार्केट और इसकी बैक साइड पर मौजूद ये खूबसूरत सा मैदानी इलाका सरसब्ज होने की वजह से जबरदस्त व्यू पेश करता है। सारा दिन यहाँ पर बैठे रहें तब भी आपका दिल नहीं भरेगा। पत्थरों से बनी हुई दीवारों की ये दुकानें यहाँ के मकाम को और ही खूबसूरत बना देती हैं। लसडन्ना के मकाम पर मौजूद ये बाजार मुकम्मल तौर पर यहाँ से देखा जा सकता है। दूर से दिखाई देने वाला ये बाजार इंतहाई खूबसूरत है। इसकी खूबसूरती की एक वजह कदीमी जमाने की अक्कासी करने वाली ये मस्जिद है। लसडन्ना के इस मकाम पर एक पार्क भी मौजूद है जहाँ पर बच्चों के लिए खूब एंटरटेनमेंट मौजूद है। बड़ों के लिए यहाँ पर खाने बनाकर उनको एंजॉय करने की भी सहूलियत मौजूद है। यहाँ पर इंतहाई खूबसूरत किस्म की चेयर्स भी लगा दी गई हैं और खूबसूरत मकाम इसको बनाया गया है। लसडन्ना का ये मकाम और यहाँ पर बनी ये दुकानें, दुकानों के पीछे मौजूद बड़ा सा ग्राउंड एरिया इंतहाई खूबसूरती को पेश करता है। यहाँ पर आने वाले सयाह इन जगहों को खूब एंजॉय करते हैं। यहाँ से शेरो डारा की जानिब हम आगे बढ़ चुके हैं। आगे दिखाई देने वाले मकामात की तरफ हमें धुंध दिखाई दे रही है। ऊंचे और बुलंदो बाला इन पहाड़ों की चोटियों से उड़ती हुई धुंध के ये बादल इंतहाई खूबसूरती का मंजर पेश कर रहे हैं। शेरो डारा तक पहुंचने के लिए आपको सामना करना होगा इस घिसे फटे रोड का, मगर रोड के ऊपर नीचे मौजूद ये मकामात इंतहाई खूबसूरत हैं। यहाँ पर नजर डालते ही आपको रोड का ये व्यू बिल्कुल भूल जाता है। लसडन्ना से 7 किलोमीटर चलने के बाद अब मैं शेरो डारा के मकाम के बिल्कुल करीब पहुंच चुका हूँ। यहाँ के बुलंदो बाला मकामात, ऊंचे ऊंचे ये पहाड़, पहाड़ों के ऊपर से गुजरती हुई ये रोड और रोड पर छाए हुए बादल इंतहाई खूबसूरत दिखाई देते हैं। यहाँ पर कुछ मौजूद कच्चे घर भी हैं जो बिल्कुल अकेले और तन्हा हैं। यहाँ पर सिर्फ एक एक घर ही मौजूद है जो तन्हाई के अंदर बनाया गया है। इस रास्ते में मौजूद ये मकाम इंतहाई खूबसूरत है। मैंने अपनी बाइक को बिल्कुल इस पहाड़ी की चोटी के ऊपर खड़ा कर दिया है। दूर से ये छोटा सा दिखाई दे रहा है लेकिन इंतहाई खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। सावन के महीने में आपको इस रास्ते के अंदर मुसलसल धुंध का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर मौजूद खूबसूरत से मकामात इस धुंध की नजर हो जाते हैं जो कि यहाँ पर आने वाले सयाहों के लिए इंतहाई मायूसी का बायस बन जाते हैं। अभी मैं संख के मकाम पे मौजूद हूँ। यहाँ से दिखाई देने वाला रायकोट का ये खूबसूरत गांव भी दिखाई दे रहा है। शेरो डारा के मकाम पे मैं पहुंच तो चुका हूँ लेकिन यहाँ पर चारों तरफ से धुंध ने इसे घेर रखा है। लेकिन उम्मीद यही की जा सकती है कि हमें किसी भी वक्त यहाँ पर बिल्कुल साफ मौसम मिल सकता है। शेरो डारा के मकाम से 2 रोडें अलग हो जाती हैं और मैं मांझी शहीद रोड पर चढ़ चुका हूँ। शेरो डारा के मकाम पर मौजूद ये मकाम जिसे मांझी शहीद के नाम से जाना जाता है, यकीनन इंतहाई खूबसूरत और मैदानी इलाकों पर मुश्तमिल ये मकाम अपनी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप पेश करता है।
मांझी शहीद का ये इलाका मुकम्मल तौर पर मैदानी इलाकों पर मुश्तमिल है, मगर फिर भी इस सारे इलाके को इस महीने में मुकम्मल तौर पर धुंध का सामना होता है। यहाँ के मकामी लोग सारा दिन इन जानवरों को इन खुले मैदानों में चारा चरने के लिए छोड़ देते हैं, जो कि यहाँ की खूबसूरती में मजीद इजाफे का बायस बन रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? मांझी शहीद की तरफ जाने वाला ये रोड इंतहाई खूबसूरत मनाजर पेश करता है और बिलखुसूस सावन के महीने में यहाँ पर मौजूद उड़ते हुए धुंध के बादल इसे मजीद चार चांद लगा देते हैं। मांझी शहीद का ये मैदानी इलाका लोगों के लिए कैंपिंग का बायस बन रहा है। यहाँ पर अब ज्यादातर लोग कैंपिंग करते हैं और अपने लिए खाने पीने का इंतजाम भी इसी मकाम पर करने को ज्यादा तरजीह देते हैं। यहाँ पर बसने वाले लोग ढोकों के अंदर गर्मियों का सारा सीजन गुजार कर जाते हैं। मांझी शहीद का ये खूबसूरत इलाका, जिसे मांझी फकीरा भी कहा जाता है, यहाँ पर बने पुरानी तर्ज के ढोकों के घर क्या ही खूबसूरत हैं। यह है मांझी शहीद का तफरीही मकाम, जहाँ पर सैकड़ों लोग रोजाना की बुनियाद पर तफरीह के लिए आते हैं। यहाँ पर खूब एंजॉय करना, कैंपिंग करना और यहाँ पर ही खाने पीने का इंतजाम के साथ साथ यहाँ पर कुछ रक्स की महफिल भी सजाई जाती हैं, जो कि इस मकाम पर इंतहाई खूबसूरत मनाजर पेश करते हैं। काफी देर इंतजार करने के बाद अब यहाँ से धुंध काफी छट चुकी है। मांझी शहीद का ये खूबसूरत मकाम अब तकरीबन वाज़ेह दिखाई देने लगा है। मांझी शहीद के मकाम पर मौजूद ये दरबार अपने अंदर एक तारीख भी रखता है, जो कि इंतहाई अजीब है। इसके बारे में हम एक और वीडियो में गुफ्तगू करेंगे। मांझी शहीद के मकाम पर मौजूद इस दरबार पर अब से हर साल उर्स भी शुरू किया जा चुका है। यहाँ पर हर साल लोगों का एक बड़ा हुजूम होता है। चाहने वाले अकीदतमंदों का यहाँ पर बड़ा रश लग जाता है। ज्यादातर लोगों का रुझान इस जगह पर इस दरबार की वजह से बना है, लेकिन इससे ज्यादा यहाँ की खूबसूरती और भी बेमिसाल है, जो कि लोगों के लिए इस तरफ आने का बायस बन रही है। शेरू ढरा के मकाम पर मौजूद ये तफरीही इलाका लोगों के लिए अपनी तरफ खिंचे आने का बायस बन रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ पर मौजूद ये अजीब व गरीब दरबार है। इस मकाम पर मौजूद एक अनोखा पत्थर भी है, जो दुश्मन की तरफ से आने वाले वार का जवाब भी देता है। मांझी शहीद का ये इलाका यकीनन आजाद कश्मीर के खूबसूरत मकामात में से एक मकाम है। शेरू ढारा की तरफ आने वाले सयाह इस मौसम को अपनाते हैं। उसकी बड़ी वजह यह होती है कि यहाँ पर धुंध के साथ अजीब मंजर पेश किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर गर्मी नहीं होती है। लोगों के लिए गर्मी में तफरीह करना मुश्किल होता है, इसलिए ये वाला मौसम सबसे अच्छा है। मांझी शहीद का ये इलाका इंतहाई खूबसूरत मैदानी इलाकों पर मुश्तमिल है। यहाँ पर बच्चों और बड़ों के लिए भी तफरीही मकामात मौजूद हैं। यहाँ पर खवातीन के लिए भी चलना इंतहाई आसान है। धुंध हटते ही ये सारा मकाम बिल्कुल वाज़े तौर पर दिखाई देता है। दूर से दिखाई देने वाला मांझी शहीद का ये इलाका बेमिसाल है।
मांझी शहीद का ये इलाका आपको कैसा लगा, कमेंट करके आपने अपनी राय का इजहार जरूर करना है। अब हम शेरो डारा के मकाम के ऊपर मौजूद मुख्तसर से मकामात को देखेंगे। यहाँ के सरसब्ज पहाड़ों के ऊपर मंडलाते हुए धुएं के ये बादल इंतहाई खूबसूरत दिखाई देते हैं। भले के दूर दराज के इलाके इस धुंध के बायस नहीं देखे जा सकते, मगर यहाँ पर मौजूद इंतहाई खूबसूरती है जो कि आंखों को बहा जाती है। मांझी शहीद का ये इलाका अब तकरीबन काफी क्लियर हो चुका है। यहाँ पर वक्फे वक्फे से इतनी तेज धुंध छा जाती है कि कुछ भी नहीं दिखाई देता, मगर थोड़ी ही देर गुजरने के बाद आपको ये सारा इलाका बिल्कुल खाली खाली दिखाई देगा। यकीनन यहाँ पर मौजूद शख्स के लिए ये इंतहाई खूबसूरत मनाजर होते हैं। इन मनाजर को लोग खूब एंजॉय करते हैं और यहाँ पर मौजूद लोगों के लिए बेहद एंटरटेनमेंट भी फराहम होती है। शेरो डारा के मकाम पर मौजूद ये खूबसूरत सा रोड सरसब्ज और हरे भरे मैदानों से गुजर कर जाता है। इसके आसपास बने हुए पुरानी तर्ज के ये घर इंतहाई खूबसूरती पेश करते हैं। मैं मांझी शहीद के दरबार से खासा दूर आ चुका हूँ, लेकिन अब वहाँ पर मुकम्मल तौर पर धुंध खत्म हो चुकी है। ये मकाम बिल्कुल वाज़े देखा जा सकता है। यहाँ पर बनाई गई इस रोड के एतराफ इतने खतरनाक हैं कि अगर कोई गाड़ी यहाँ से नीचे चली जाती है तो उसे वापस लाना नामुमकिन होता है, और अगर कोई शख्स यहाँ से किसी भी तरह गिर जाए तो वो बचने के काबिल नहीं रहेगा। हम जितनी देर भी इस मकाम पर रहें इतना ही मजा आ रहा है। यहाँ पर जितना आप तफरी करेंगे उतनी आपको नई चीजें देखने को मिलेंगी। जितना आप घूमेंगे उतना ही ज्यादा इलाका आपको मजीद बढ़कर दिखाई देगा। यकीनन ये इस जगह की एक अजीब खूबसूरती है। संग के मकाम पर मौजूद ये ढोके इंतहाई खतरनाक जगह पर हैं। यहाँ पर किसी भी हंगामी हालत में इन लोगों को फिलफौर देहातों की तरफ भेज दिया जाता है और इन घरों को मुकम्मल तौर पर खाली करवा दिया जाता है ताकि किसी तरह का नुकसान ना हो सके। इस मकाम पर खड़े होकर शेरो डारा के सारे इलाके को वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। यहाँ पर अब धुंध खासी दूर दूर पहाड़ों के ऊपर दिखाई दे रही है, जबकि शेरो डारा का ये सारा इलाका अब वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। यहाँ की खूबसूरती बिला शुबा बेमिसाल है।